Good morning, students. As in my previous video, I have introduced the basic concept of tension. Today, we will use that concept in numericals. So, we will practice numericals on that basis. So, let me start with the first numerical. See, before starting the numerical, you must make it a habit that whenever you read the statement, then analyze what are the given factors and what you have to find. Almost 50% work will be done if you will understand the statement. So try to understand the statement first. Two bodies, A and B, of masses 10 kg and 20 kg respectively are kept on a smooth horizontal surface, which are tied to the ends of light string. First of all, understand these points. At two masses A and B, these are the masses, are connected by a light string, and this system, these two bodies are placed over horizontal surface. A horizontal force, F represented by F, that is equal to 600 Newton is applied to A and then to B. It means external force of 600 Newton is applied. One time it is towards end A, towards block A, and the second time it is applied towards block B along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? See, basically here two same blocks are connected by the string. Here we have to see that when the direction of force is changed, what will be the value of tension developed in the same string. So first of all, on the basis of statement, we will draw the figure. Two masses, this is A and this is B. Being different of mass, this is 10 kg, this is 20 kg. These are connected by light string. Here, a horizontal force, that force is given to be 600 Newton. It is applied first to end A. So it means first case I am taking when F is on end A. So now basically when this force is acting either on end A or end B. Basically first you have to understand the purpose of force. Force apply will bring the system in motion. अब जब फोर्स लगाने के बाद सिस्टम मोशन में आता है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज हो सकती है, कौन सी क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं. फोर्स लगा हुआ है, मासेस हमें गिवन है, m1 इज 10 किलोग्राम, m2 इज 20 किलोग्राम. सो बेसिकली दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ दीज टू मासेस. और इस स्ट्रिंग के मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये तो हमारी मासलेस स्ट्रिंग रहेगी. अब अगर हम कहें कि फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू A, दैट मीन्स 600 न्यूटन इज m1 प्लस m2 इंटू A. इट मीन्स ये फोर्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है पूरे सिस्टम में. पूरा सिस्टम चाहे इधर मूव करे चाहे उधर, एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना. क्यों? क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन पे. अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, फोर्स कांस्टेंट गिवन है, मासेस कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोई भी हो, एक्सेलरेशन सेम रहेगा. कितना आ जाएगा, दिस इज 600 डिवाइड बाय 10 प्लस 20, सो इट इज 600 डिवाइड बाय 30. इट कम्स आउट टू बी, दिस इज योर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट केस आई हैव डन. Acceleration we have calculated. Now see, here force is acting on end A. As the force is acting, this string will be in the stretched state. So due to it, it will be stretched. इस बॉडी से क्या होगा, रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन में. अगर हम बॉडी बी पे बात करें, यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें स्ट्रेचिंग किस तरह इस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट में हो जाएगी. यानी ये फोर्स इधर है तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर है. इस एंड पर देखेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट इधर होगा. यानी सिंपल टर्म्स में आप हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी इस पे फोर्स लगता है तो टेंशन आप दोनों डायरेक्शन में दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरे पर फोर्स लगाते हैं. ठीक है. अब हम कहेंगे फर्दर, हमें निकालनी है टेंशन की वैल्यू जब हमने फोर्स लिया है ए बॉडी पर. उस केस में सबसे पहले अगर हम इसको कंसीडर करें, एक सिस्टम ले लें,
ये फोर्स लग रहा है ए ब्लॉक पर, तो अब इस पर लिखिए फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन पीछे की तरफ लग रही है, सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ होगा ना, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटिंग फोर्स जहाँ है एक्सेलरेशन वहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी? F माइनस टी, माइनस क्यों लिया? क्योंकि टेंशन लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी m1 इंटू ए, क्योंकि अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए की, इसीलिए मास भी किसका कंसीडर होगा? ए का। सो नाउ हियर दिस इक्वेशन इज फ्रेम्ड, F that is given to be 600, tension it is unknown, mass of one is 10 kilogram और acceleration we have calculated. तो अब यहाँ से when you are substituting the values, just rearranging it, 10 into 20 200, take it on the left side, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 400 न्यूटन। इसका मतलब जब ये फोर्स ब्लॉक ए पर लगा है तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? 400। देखिए हमने ब्लॉक ए पर लगने वाला फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टेंशन की वैल्यू ऑब्टेन की। सी इफ वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक बी, that will also be quite simple, that can be an alternative to the method we have done. See, as the force is applied to A and A and B are connected by a string, so what will happen? This block B will also move with the same acceleration. अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी B के लिए? तो क्योंकि इसमें सिर्फ इस तरफ लगने वाला ही फोर्स है ना, यहाँ तो कोई ऑपोजिंग फोर्स है ही नहीं, यहाँ कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ इस डायरेक्शन में सिर्फ एक्सिलरेटिंग फोर्स है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? और यू कैन से अनदर वे दैट F इज इक्वल टू m2 इंटू ए। नाउ m2 की वैल्यू कितनी है? 20, और एक्सेलरेशन कॉमन है तो ये हो गया 20, ये हो गया 400 न्यूटन। सो इसका मतलब ये जो फोर्स इस पे डेवलप हुआ है, जो बेसिकली क्या है, इन बिटवीन स्ट्रिंग के बीच की टेंशन है, वो टेंशन कितनी डेवलप हो गई? 400 न्यूटन। चाहे तो आप इस पार्ट से कर सकते हैं और चाहे तो आप फर्स्ट पार्ट से कर सकते हैं, दोनों ही बेसिकली सेम रहेगी, क्योंकि ये जो फोर्स होगा ये दैट विल बी द टेंशन दैट इज डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग बिकॉज इट इज स्ट्रेच्ड। सिमिलरली नाउ if the force is acting on B, now here this is block A and this is connected to block B, and now force is acting in this direction. So when force is acting in this direction, string will be in the stretch state, tension will be in the opposite direction. Again I will use this equation for this. अगेन व्हाट विल बी द इक्वेशन? एक्सेलरेटिंग फोर्स इधर लगेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स माइनस टेंशन इक्वल टू m2 इंटू ए। 20 किलोग्राम है तो यहाँ हो जाएगा 600 माइनस टी इक्वल टू 20 इंटू 20, दैट मीन्स टेंशन इज 200 न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी आर कमिंग, जब फोर्स आपका राइट साइड पे लग रहा है तो टेंशन की वैल्यू डिफरेंट है, जबकि जब फोर्स आपका लेफ्ट साइड पे लग रहा है तब उस केस में टेंशन की वैल्यू 400 न्यूटन है। इसका मतलब दोनों ही केसेस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की इंडिपेंडेंट रहेगी टेंशन। देखने में हमें क्या लगता है कि फोर्स किसी भी तरफ लगा लो तो टेंशन तो सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, लेकिन स्ट्रिंग में इस केस में तो टेंशन सेम है, जैसे मैंने इस केस में दिखाया कि चाहे आप ए के लिए निकालो चाहे बी के लिए निकालो, टेंशन सेम रहेगी जब तक डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हमने बदला, उस केस में जो टेंशन डेवलप होगी स्ट्रिंग में वो डिफरेंट हो जाएगी। अब आप चाहें तो इस केस में भी आप इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं टेंशन, और वो टेंशन, वो एक्सेलरेटिंग फोर्स बेसिकली टेंशन क्या हो जाएगी? m1 इंटू ए। आप निकालना चाहें तो देख सकते हैं m1 इंटू ए, दिस इज m1 इज 10 and acceleration is 20, so it will be 200 Newton. इस केस में दोनों सेम है। So from here we conclude that tension in each case will be different because it is depending upon the direction of force applied. Coming to next numerical, see figure. Here a man of 6 kilogram mass. It is suspended by a rope of length 2 meter
from the ceiling. Here one ceiling is given, this rope, this one and this one. Basically this rope is of 2 meter length. A force of 50 Newton in horizontal direction is applied at the midpoint of the rope. Actually it is not shown properly in the figure. I will just redraw while explaining it. Exactly this point should be exactly at the middle of it, because if this length was of 2 meter, half should be above the force and half should be below it. Force is applied at the midpoint of this rope. Now what is the angle of the rope which makes with the vertical in equilibrium? See, it is hand. अब उन्होंने क्या कहा है कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने लगाया 50 न्यूटन, तब जितने एंगल से ये शिफ्ट हुई वर्टिकल पोजीशन से, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप विच मेक्स विद द वर्टिकल. तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. ऑल्दो यहाँ फिगर दी हुई है, बट आई फील कि गिवन स्टेटमेंट को हम फिगर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए कैसे. एज पर द फिगर हमें गिवन है कि एक 6 किलोग्राम मैन को हमने कनेक्ट किया है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ है 2 मीटर और स्ट्रेट कंडीशन में ये सीलिंग से कनेक्टेड है स्ट्रिंग. अब क्या कहा है कि एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं. तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने से इसकी डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी. तो किस फॉर्म में आपको फिगर नज़र आ रही है कि मान लो ये है, तो इस केस में ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई और ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट, यानी अगर ये 1 मीटर है तो ये भी आपका 1 मीटर होना चाहिए और ये 6 किलोग्राम. और यहाँ से फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा 50 न्यूटन. तो इस तरह से अरेंजमेंट हो गया. राइट. अब आपको निकालना क्या है कि रोप वर्टिकल से कितने एंगल से चेंज हुई है, कितना एंगल इसने सबटेंड किया है. तो अब सबसे पहले हम देखिए कि जैसे ही इनिशियली इस रोप में जब हमने कनेक्ट किया हुआ है तो इसके वेट के इन्फ्लुएंस में ये स्ट्रेचिंग है, इसमें टेंशन होगी. लेकिन अब अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, इसे बीच से पुल कर रहे हैं, तो टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. टेंशन की वैल्यू यहाँ पर हम कहें मान लो ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ तो फोर्स आ गया, ये टेंशन हो गया T1. और नीचे क्या लग रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग का मास अभी भी कंसीडर नहीं किया गया है, कहीं भी हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मास ऑफ स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ इज दिस वन. इसका मतलब जहाँ भी मास ऑफ स्ट्रिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मीन्स वी आर नॉट कंसीडरिंग द मास ऑफ स्ट्रिंग और इट इज़ ऑफ नेग्लिजिबल मास. सो नाउ अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम कहें वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इज 6 into 10. I am taking G here as 10. You can take 9.8 also, it's your choice. I am taking it 10 because weight here is 6 into 10, that is 60 Newton. Now see here in the figure. Here this tension when we are just resolving, देखिए ये आपका वर्टिकल है और ये एंगल थीटा है. तो आप लोग सोचिए ये एंगल वर्टिकल के साथ होने के कारण अब ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे आप कि वर्टिकल के वाला कंपोनेंट साइन होगा. हमेशा हमने क्या लर्न किया है कि जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो जिस लाइन के साथ एंगल बना होता है वो कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है. तो ये हो जाएगा T1 cos 60. तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एज पर रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन दिस विल बी T1 sin थीटा. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस अब 2 स्टेप में ये न्यूमेरिकल रह गया. वी हैव रिजॉल्व्ड इट. दिस कंपोनेंट इज T1 cos थीटा एंड दिस इज T1 sin थीटा. अब क्या करेंगे, नाउ इस कंडीशन में अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करेंगे एंड वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे. सबसे पहले T1 cos थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट टू 60 न्यूटन एंड T1 sin थीटा इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू 50 न्यूटन. ये 2 इक्वेशंस आ गई. कहाँ से, फिगर से. अब सिंपल आपको क्या निकालना था, थीटा. सो लेट वी डिवाइड सेकेंड एंड 1. सो व्हेन यू विल डिवाइड you will get T1 sin theta upon T1. Force is same, T1 cos theta. This is 50 upon 60. ये कैंसिल हो गया. Tangent theta is 5/6 and I can write it as theta as tan inverse 5/6. We can leave up to this step or up to this step. So as per this figure, what we have studied here, that when this force has been applied, then we are resolving it. See, if
this force has not been applied, in that case what you will say, that tension is equal to weight because it is stable at this position. But it has been given at the center point you have applied force of 50 Newton. So in that particular case, now it will be deviated from its position, and then you have used the concept of resolution. On resolving, horizontal components balance and vertical components are also balancing. This will help you to calculate the value of angle theta with the vertical. Now coming to next numerical. Three masses M1, M2, M3 are shown in the figure. Here three masses have been shown. Their masses are 5, 2 and 3. 5, 2 and 3 kilogram respectively. Calculate values of tension T1, T2 and T3 when the whole system is going upward. In one time ये क्या दिखाया हुआ है, फर्स्ट केस में whole system is going upward with an acceleration of 2 meter per second square. And in second case, when the whole system is stationary. It means when the system is stationary, then tension will be different from the case when the system is accelerating. So how? We have to see how we will frame equation of motion. Now, as three masses, 5, 2 and 3 kilogram, these are connected as shown in the figure. We have to calculate the value of tension T1, T2 and T3. So first case, when the system is accelerating upward with an acceleration of 2 meter per second square. This arrow is indicating this is accelerating upward. देखिए बेटा, अगर हमें इस क्वेश्चन को स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें जो मेन पॉइंट जिसको ध्यान से देखना है कि masses of blocks are considered, whereas this mass of string is further not considered here. If I will say I have to calculate the value of tension T1, तो अब उसके लिए क्या होगा कि पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा. ऊपर जाने के लिए ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स डोमिनेट करेगा. इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इस एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन, सो इसमें ऊपर लगने वाला फोर्स तो टेंशन T1 है. अब नीचे क्या लग रहा है? वेट लग रहा है. किसका वेट लग रहा है? वेट लग रहा है तीनों ब्लॉक्स का. राइट, यू विल नॉट कंसीडर T2 एंड T3 इन दैट केस. क्यों? क्योंकि अब हम पॉइंट ए पर कंसीडर कर रहे हैं, यानी हम ऊपर फर्स्ट ब्लॉक के लिए कंसीडर कर रहे हैं. जब हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो टेंशन T1 अपवर्ड लगेगा, लेकिन मासेस ऑफ ब्लॉक और वेट ऑफ ब्लॉक जो कि डाउनवर्ड लगेगा वो कंसीडर होगा. स्ट्रिंग की टेंशन या स्ट्रिंग के मास का कोई भी रोल नहीं रहेगा. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? सी, T1 force acting upward first of all, then downward direction, that is giving weight, so I am writing minus sign because this weight is acting in the downward direction, right? T1 minus weight acting downward, and difference of these two will produce acceleration. acceleration किस में प्रोड्यूस हो रहा है? तीनों ही मासेस में हो रहा है ना. पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है तो तीनों का ही कंबाइंड मास ऊपर एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A. बेशक आप अलग अलग लिख सकते हैं या साथ में लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G इक्वल टू M1 प्लस M2 plus M3 into A. So you have to understand to frame this equation, because tension is acting upward, weight is acting downward, so difference of these two will produce accelerating force. So now to calculate value of T1, just take this term on right hand side and you can see that M1 plus M2 plus M3 is common. So can I take M1 plus M2 plus M3 common? And here this A and this minus will be plus G. दोबारा देखिए, हमने इस पूरी टर्म को इधर लेकर, क्योंकि कॉमन फैक्टर दोनों में ही सेम है, कॉमन फैक्टर है M1 प्लस M2 प्लस M3, तो आई हैव टेकन दैट कॉमन एंड साइमल्टेनियसली आई हैव यूज दिस स्टेप. अगर आपको इस स्टेप में कंफ्यूजन है तो पहले आप इसको इधर ले जाइए, फिर कॉमन ले लीजिए. इट विल नॉट मेक डिफरेंस. अब नाउ यू विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ मासेस. 5 प्लस 2 plus 3 into 10, not 10, A is 2 and G is 10. So it will be 10 into 12.
this is 120 Newton. So it means tension developed in the uppermost string connected to 5 kilogram mass is 120 Newton. I hope this is clear. Now again coming for calculating tension T2. देखिए जब हमें टेंशन T2 निकालना है तो ना तो ऊपर वाले स्ट्रिंग की टेंशन ना ही मास या वेट कंट्रीब्यूट करेगा. अब उस केस में नीचे लगने वाले फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगे. यानी अब इस केस में ये T2 ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है और ये दोनों मासेस ही एक्सेलरेट कर रहे हैं अपवर्ड. पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज ट्रू. लेकिन इस केस में जब हम जिस पर्टिकुलर ब्लॉक को कंसीडर करते हैं उसी ब्लॉक के पर लगने वाले फोर्सेस दे रहे हैं. पहले हमने 5 किलोग्राम पे लिया था तो उसके नीचे सारे फोर्स अटैच थे, सारे ब्लॉक्स अटैच थे, तो उन सबका मास कंट्रीब्यूट कर रहा था. अब इस केस में ऊपर वाला मास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि हैंगिंग स्ट्रेचिंग किसकी वजह से है? नीचे लगने वाले वेट से. ऊपर वाले वेट से नीचे की तरफ तो कोई स्ट्रेचिंग नहीं आ रही है. तो इस केस में हम कहेंगे इक्वेशन क्या होगी सेकेंड केस में, दिस विल बी T2 माइनस कौन कौन से मासेस हैं? सेकेंड एंड थर्ड मासेस, M2 प्लस M3 इंटू जी, क्योंकि दोनों का वेट डाउनवर्ड है और इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रहा है? M2 प्लस M3 इंटू ए, यानी एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो T2 क्या हो जाएगा? M2 प्लस M3 इंटू ए प्लस जी. So M2 is 2, M3 is 3, A is 2, G is 10. So it is 5 into 12, that will be 16 Newton. This is the first case where the whole system is accelerating. We have calculated T1 and this is T2. Now if you have to calculate T3, अब क्या कंसीडर करेंगे? सिर्फ नीचे वाला. ये हमारा कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हमने आज पहले न्यूमेरिकल में किया था कि अगर हमें फोर्स ए पर लग रहा था और हमें बी ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स था वो बेसिकली टेंशन के इक्वल था. अब क्योंकि इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है अपवर्ड T3 और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा? इसका वेट. तो अब इसका वेट कंसीडर होगा सिर्फ 3 किलोग्राम का और एक्सेलरेशन में भी, एक्सेलरेटिंग फोर्स में भी इसी का मास कंसीडर होगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी? T3 माइनस M3G इक्वल टू M3A. तो T3 क्या हो गया? M3 into G plus A. It will be M3 is your 3, G is 10, A is same 2. So it is 3 into 12, 36 Newton. So it means these strings possessing tension, these are having different values, right? Now this was the case when the whole system is accelerating upward. Here second case is left where system is stationary. Let me discuss that also. Now the second case when the system is stationary. See, when the system is stationary means no accelerating force will be there. It means system is at rest, right? So in that particular case here basically we can say that here tension will balance with the weight. So if I have to calculate tension T1, so the weights of these three blocks will be contributing. So in that case T1 will be equal to M1 plus M2 plus M3 into G, because system is having no acceleration, it is at rest. So vertical upward force will balance with vertical downward force. So in that case 5 plus 2 plus 3 into 10. So it is your 10 into 10. So it comes out to be 100 Newton. Similarly, now you can just pause the video and try to solve the value of T2 and T3. Because if you will be able to solve such kind of numericals, then you will get confident, then you will have understanding of concept. So try these values by yourself, then you will tell you the result later on. So now for calculating T2, here T2 will be equal to total weight acting downward. See, mass of string we have not considered because it is not specified. So it will be M2 plus M3. This is M1, this is M2, this is M3. Sometimes we may get confused in taking the values. So just label them properly so that no confusion left.
So T2 is M2 plus M3 into G. So M2 is 2, M3 is 3 into 10. So it will be 50 Newton. Right? Now T3 will be equal to M3 into G. That means 3 into 10 and it will be 30 Newton. So whether the system is accelerating or it is stationary, tension in the string is different because the weights attached under it is different. But when the system is accelerating upward, in that case, that accelerating force will be the difference of tension minus weight. When the system is stationary, then weight will be balancing with the tension acting at that point. Here you have seen two cases which has been given in the statement, but I am giving you one work. Find, you can note down from here, find tension in string. Each value you have to calculate, T1, T2, T3, when system is accelerating downward. I have solved the case for system accelerating upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया था, अब यही पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है. तो उस केस में आपके लिए होमवर्क है, आप इसी तरह से एक्सेलरेशन आपको जब डाउनवर्ड दिया है तो यू हैव टू कैलकुलेट T1, T2 एंड T3. So try it by yourself. So that's all for today. Today we have discussed very important applicative part of how to use this concept of tension in numericals. So just do all these questions by yourself, then you will try another numericals. Thank you. Have a nice day.